प्री बोर्ड्स में 60-70 मार्क्स आया एंड फाइनली बोर्ड्स में 90-95 आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं ट्यूशन प्रैक्टिस से, बट प्रोक्रेस्टिनेट कर देना कि बाद में करेंगे। हाय, क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में है आप एंड आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है बिकॉज यू थिंक यू हैव पोटेंशियल, यू बिलीव दैट यू हैव पोटेंशियल, देन येस यू ऑन द राइट वीडियो। अब देखो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सम फेक मोटिवेशन, फेक टिप्स प्योरली व्यूज लेने के बेसिस पे। No, you're going to get a good content, like a lot of good content in this video. So do not forget to subscribe to this channel, share it with your friends and check the link for a lot of free resources. Without any further ado, we are going to begin this video. But end तक देखना बिल्कुल मत भूलना because end में golden rules, golden tips, golden laws are going to be mentioned there. तो वो मिस मत करना. वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि एंड तक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, नोट्स, फ्री रिसोर्सेज सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है. So without any further ado, let's begin. Now, I know a lot of students face this issue and I am going to talk about it. Because lifetime, if you have clicked on this video, you might be an average student or maybe a little less scoring, a little more scoring. But in this video, we are going to talk about the issue, the reasons behind it and how to solve it. So first of all, hi everyone, I'm Avika. I scored 98.4 in 10th. 93 in 11th, also the first rank without any coachings. Currently, I'm a CBC 12th grader and I'm going to LN for coaching. Nothing other than that. I have used my entire life for scoring well. Only a few resources, a few principles, a few laws, whichever you're going to call it. No, I did not skip any social media. No, I was not the kind of person जो सिर्फ किताबों में घुसा रहता है. I had all the fun. I doom scrolled every damn day and I did everything that you were imagining कि हम एक टॉपर को नहीं करना चाहिए. ठीक है, a usual stereotype talking about that. Now, in this video, we are going to talk about everything that you should implement in your life right now in order to score good. Like, probably, if you're in class 10th and you have clicked on this video, the main reason why students score less in class 10 is not because they are lazy, maybe a little bit, लेकिन ये main reason नहीं होता है. Main reason होता है procrastination. Now look, laziness is yes a factor in it, but procrastinate कर देना कि बाद में करेंगे and certain seniors giving advice कि आप लास्ट के महीने में करके अच्छा स्कोर कर सकते हो. Look, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए आप जो क्रैम अप करोगे, जो रटोगे लास्ट के महीने में, वो कुछ फायदा नहीं देगा. बिकॉज फर्स्ट थिंग, सीबीएसई का पेपर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. येस, प्रोबेबली कुछ क्वेश्चंस बता सकते हो, बट एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट का पैटर्न कैसे रहने वाला है कोई भी नहीं बता सकता एक्सेप्ट सीबीएसई. सेकेंडली, अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो 11th-12th में आपकी नैया पार नहीं हो पाएगी. सो बेटर कॉन्सेप्ट समझते चलो, अभी आपके पास बहुत टाइम है. And when I say that you have a lot of time, I mean that you have a lot of time in the sense कि पढ़ने के लिए, ठीक है. Now, talking about me, देखो मेरे खुद के legit, not even kidding, throughout the year 85 to 90 के बीच में मार्क्स आते थे. मेरे प्री बोर्ड्स में 85 आए थे. So when I say कि आपको टाइम मिलेगा, I do not mean कि मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पढ़ा था. Not going to lie about that at all. मैंने दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट किया था, by which I mean कि मैंने PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब दिसंबर में स्टार्ट करा था. उससे पहले मैं बस टॉपिक पढ़ती थी, NCERT सॉल्व करी, पेपर दे आई, बस दैट्स इट. एंड आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिस्ट्रैक्शंस. अ लॉट ऑफ माई पूकीज को really well. Like last year I guided a lot of students for 10, 99.8, 99.6, 99.2 and a lot more. And the reason behind that is not because कि वो एक stereotypical toppers है. It's because बहुत सारे ने इम्प्रूवमेंट भी करी है. They realize their potential. देखो, I have legit seen students जिनके प्री बोर्ड्स में 60-70 मार्क्स आया एंड फाइनली बोर्ड्स में 90-95 आए हैं. So it's not some miracle. I'm going to break it down for you simply. First thing, distractions. Distractions क्या क्या हो सकते हैं? Doom scrolling, social media, boyfriend, girlfriend. Get rid of those people. Now, when I mean that get rid, I do not mean कि completely खत्म ही कर दोगे सब कुछ, because yes, it's going to make you have like a mental breakdown. So I do not want that in your class 10. If you're already indulged, keep it till your boards. After your boards, तुम अपना समेटना, तुम्हें जो भी करना है. I hope you got my point. Now, I also do not want to motivate you in certain way कि तुम्हें ये सब बनाना चाहिए, तुम्हें अभी अपने लिए पार्टनर ढूंढना नहीं. अभी आपकी उम्र नहीं है. मानिए, मेरी आंखों में देखिए, मैं बता रही हूँ ना, कुछ सोच समझ के बता रही हूँ. ओके. Now the next thing that we are going to talk about is aesthetic notes. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो मेरे साथ के भी हैं कि वो लोग aesthetic notes बनाते रहते हैं. जैसे कुछ होते हैं
एक ही चैप्टर के नोट्स को 2-2 3-3 बार अलग-अलग रंग से बनाना, कुछ लोग होते हैं जो एस्थेटिक बनाएँगे, फिर रफ नोट्स बनाएँगे, फिर कोचिंग में अलग बनाएँगे, स्कूल में अलग बनाएँगे। आपको ये सब नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो डू नॉट डू दिस एट ऑल। द नेक्स्ट थिंग इज़ नेग्लेक्टिंग लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। 10th में आके आप अपना मेन फोकस मैथ साइंस को दे देते हो, इंग्लिश, हिंदी जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भूल जाते हो। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि इन सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी, क्योंकि बहुत स्कोरिंग होते हैं। नाउ लुक, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, 9th जैसा नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टफ, बट डू नॉट वरी, योर दीदी इज हियर फॉर यू थ्रू आउट द ईयर। आई एम गोइंग टू गाइड यू हर एक स्टेप पे। व्हेनेवर यू नीड हेल्प, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। कोई भी फ्री रिसोर्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन हैज अ लॉट ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन मेरे भी कई बार हो चुका है दैट इन माई बोर्ड्स मेरे हिंदी में 95 के अराउंड मैंने मैक्सिमम एक्सपेक्ट करे थे कि इससे ज़्यादा तो भगवान भला होगा तो ही मेरे मार्क्स आएंगे। बट गेस व्हाट, आई वर्कड अ लॉट ऑन माई प्रेजेंटेशन, क्लीन वे में, नीट वे में, क्लियरली अपने आंसर्स प्रेजेंट करें, एंड आई गॉट 99 इन हिंदी। ओके, सो इसमें कोई मैंने पॉलिटिकल साइंस, न्यूरो साइंस, रॉकेट साइंस, कोई सी गणित नहीं लगाई है, कोई सी विज्ञान नहीं लगाई है। इट वॉज प्योरली पेपर प्रेजेंटेशन। कैसे करनी है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी वेल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स मूव अहेड। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट इज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से, इंक्लूडिंग मी। कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड उसके बाद सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे, देन आई वुड गेट रियली नर्वस कि शायद में कॉन्सेप्ट नहीं आया। सो ये सारी चीज़ नहीं करना। नेक्स्ट थिंग इज 70% रूल। अब देखो, दिस इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी। 70 to 80% जब मेरे को कोई टॉपिक समझ आता है, आई कॉन्स्टेंटली स्टार्ट रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। 100% परफेक्शन से कभी किसी को भी कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, एक्सेप्ट अ फ्यू स्टूडेंट्स। तो आपको फोकस करना है कि 70-80% समझ आके स्टार्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही हम चीज़ें सीखते हैं, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड थिंग एक अलग चीज़ है, बहुत ही वियर्ड मेथड्स है सारे, लाइक द पैनिक रिविजन। आई डू इट एवरी टाइम बिफोर माई एग्जाम, लाइक बिफोर स्लीपिंग आई क्विकली गो थ्रू ऑल फॉर्मूलाज, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल द डायग्राम्स, और फिर सो जाती हूँ। एंड उसके बाद में मेरे को ऑब्वियसली पैनिक हो जाती है थोड़ी देर बाद में, बिकॉज व्हेन आई ट्राई टू स्लीप आई रिमेंबर सर्टेन पॉइंट, सर्टेन टॉपिक जो मैं रिवाइज करना भूल गई, विच हेल्प्स मी, लाइक आई वुड गेट अप अगेन रिवाइज दैट। नाउ दिस इज अ बिट टॉक्सिक, सो आई वोंट रिकमेंड यू टू फॉलो दिस राइट नाउ, क्योंकि अभी 10th है। डू नॉट फॉरगेट टू एंजॉय योर 10th एट ऑल, ठीक है। Okay, after this we have the blurting method. Now blurting is basically whenever you study a topic, उसके बाद आपको एक plain sheet of paper लेना है, उसमें वो सारा टॉपिक लिख देना जितना आपको याद है। Whatever you don't remember, mark that out with a red pen and later on make sure कि आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, अच्छे से रिविजन हो जाए। एंड लास्टली, कोई भी चैप्टर समझ रहे हो, एक्सप्लेन इट टू योर वॉल, एक्सप्लेन इट टू समवन इन अ वे ताकि आपकी बेटर और बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस टॉपिक की। एंड अब एक लास्ट चीज और बच गई, विच इज PYQs। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, PYQs प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। एज इट इज क्वेश्चंस भी आते हैं, बट कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेटेड होता है, so do not forget to practice your PYQs. Subscribe to this channel. That was it for today's video. It was a short and really helpful video. I hope आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो share with your friends, subscribe to this channel, and that was it. Thank you for watching. Bye bye.